Good morning everyone and welcome to the class. Today we will be starting a new chapter in civics, and the name of the chapter is Why Do We Need a Parliament? First of all, as we have discussed earlier also, we have discussed the constitution, how it came into being, about the Constituent Assembly, and we have discussed about the features of the Indian Constitution. And in that chapter we have seen that our fight against the British rule was not only to remove the British rule. We were under the colonial rule of the British, and we fought a very long battle to free ourselves from this colonial rule. And because of the colonial rule, which was highly undemocratic, which was based on the principle of inequality, and people were not given freedom at all in the colonial period. So what we find that our fight was not only to end the British rule, but actually our fight was also for the establishment of a democratic government. And this is the reason when we got independence from the British, we were in the process of at that time we were in the process of making of our own constitution, and our constitution makers, the national leaders, were very much particular about this, how to ensure a democratic government. And as we all know that democracy is the government of the people, है there is what is important, most important in a democracy is the participation of the people. The people must participate in the decision making process. But as we know, we have such a large population and vast area. Not only this, all the people are not having knowledge about the government and the decision making process. So it is practically impossible that all the citizens, all the people in the country will take direct participation in the process of the government. There is no direct participation. We participate in the process of the government through our representatives. And here you must you are aware with this term representative. It's not a new term for you, but you must understand it better, because these terms are very basic in civics, and if you are not knowing these terms in a proper manner, then they are certainly going to cause confusion in your mind. So representatives are just like in an area people are living. People have so many problems, their demands are different, so they choose one of them as their representative. That representative is going to represent the people of that area. रिप्रेजेंट करना मतलब उनकी प्रॉब्लम्स को, जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों की डिमांड्स हैं, जो लोगों के इंटरेस्ट हैं, उनको सही जगह पर रिप्रेजेंट करना. सही जगह पर मतलब गवर्नमेंट के सामने उनको रखना, अपने एरिया के लोगों के प्रॉब्लम्स को, है ना, ताकि उन प्रॉब्लम्स पर ध्यान दिया जा सके और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लिया जा सके बाय द गवर्नमेंट. So this is representation. We, the common people, cannot participate directly in the government, है ना. For that purpose, in order to participate in the process of the government, what we do, we choose our representatives. We give our power to the representative, and the representative is being given the power to rule by the people, है ना. जो लोगों के पावर था कि हम अपने ऊपर रूल करेंगे, डेमोक्रेसी है, वी विल रूल ओवर आवरसेल्व्स, इस पावर को हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को दे दिया. जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ में
हमारी एरिया की जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डिमांड्स हैं, उन सबको गवर्नमेंट के सामने रखेगी और उनका सही तरीके से रिजॉल्व करेगी, है ना। जैसे कई बार आपकी क्लास में अभी तो नॉट एट द स्कूल लेवल बट एट द कॉलेज लेवल यू विल फाइंड दैट देयर इज़ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, एक पोस्ट होती है क्लास रिप्रेजेंटेटिव। This class representative is there at the college level, not at the school level. तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव का ये मतलब होता है कि कोई भी जैसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, सपोज 40 स्टूडेंट्स आर देयर, 100 स्टूडेंट्स आर देयर, कॉलेज में ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, है ना। सपोज 100 स्टूडेंट्स हैं, अब इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं अमंग दीज 100 स्टूडेंट्स, सम आर सच हु हैव सम लीडरशिप क्वालिटी, है ना। उनमें लीडरशिप की क्वालिटी, कोई भी बात होती है तो वो आगे बढ़ के बोलते हैं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। सबकी ऐसी नेचर नहीं होती है ना, कुछ लोगों की ऐसे नेचर होती है, तो ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं। इन्हीं कुछ लोगों में से जो क्लास है, बच्चों की जो क्लास है, वो अपने में से किसी एक को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं। कैसे चुनते हैं? मोस्टली ये इलेक्शंस के थ्रू ही चुनते हैं। क्लास में जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके लिए इलेक्शन होता है। ओके, इलेक्शंस आर हेल्ड इन द कॉलेज, जिसमें कि जो क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। और जब जो भी जैसे 4-5 लोग चाहते थे रिप्रेजेंटेटिव बनना, उन 4-5 लोगों का नाम था। जब भी जो लोग वोट देने गए इलेक्शन में, जो स्टूडेंट्स, उन्होंने 4-5 लोग हैं, मान लीजिए ABCDE 5 जने थे, उसमें से सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला वो क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन गया। ओके, अब क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, अब उसका काम क्या है? व्हाट इज़ हिज फंक्शन? हिज फंक्शन इज़ टू रिप्रेजेंट द क्लास इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट, है ना। जो उनके स्कूल कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, लाइक प्रिंसिपल हैं, क्लास प्रिंसिपल हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनके सामने अपने क्लास के जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको वो उनके सामने रखते हैं। ठीक है, क्यों रखा जाता है उनके सामने? ताकि जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, है ना। तो दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन, इसी को हम रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। सब लोग, क्लास के हर बच्चा अगर सीधे चला जाए प्रिंसिपल के पास कंप्लेन ले लेकर, तो फिर उसका सॉल्यूशन भी नहीं हो पाएगा और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सो एक जने को रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर लिया गया, एंड नाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव इज़ गोइंग टू represent the class. This representative is going to make aware the management about the problems of the student, about the needs of the students. Okay, so this is representation. In the similar way, जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में कैसे काम करता है? हाउ डज डेमोक्रेसी फंक्शन? डेमोक्रेसी ऑल्सो वर्क इन द सिमिलर वे। हम डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जैसे कि पूरी की पूरी कंट्री को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है। ओके, एंड दीज स्मॉल पार्ट्स आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ओके, पूरी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है। दीज पार्ट्स आर नोन एज कंस्टिट्यूएंसी। अब हर एक कंस्टिट्यूएंसी से क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। सपोज करिए कि एक कंस्टिट्यूएंसी जो है उसकी जो पॉपुलेशन है, वी आर जस्ट एज्यूमिंग, है ना, उसकी पॉपुलेशन 10 लाख है। ठीक है, अब जो 10 लाख इसकी पॉपुलेशन है इस कंस्टिट्यूएंसी की, तो यहाँ पर 10 लाख लोग रहते हैं। ये 10 लाख लोग अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनेंगे? इलेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब इलेक्शन हुआ, सपोज करो इलेक्शन जब होता है तो वो एक जने को तो वोट नहीं देना होता है, कई सारे लोग चाहते हैं रिप्रेजेंटेटिव बनना। वही जिन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, दे वांट टू बिकम रिप्रेजेंटेटिव।
है ना। तो ऐसे सपोज हम करते हैं कि ऐसे 5 कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन में हैं, ABCD and E. These are the 5 candidates जो कि इलेक्शन में इनको हम कहते हैं कि दे आर कंटेस्टिंग इलेक्शन, वो इलेक्शन चुनाव लड़ रहे हैं, होता है ना, सुनते हैं ना, चुनाव लड़ना, contesting election. These 5 candidates are contesting the election. These all the 5 ABCD, they all want to become the representative of this constituency, है ना, इस constituency के वो representative बनना चाहते हैं और इसके लिए वो election contest करते हैं. अब जब election होगा तो ये जो 10 लाख लोगों की constituency है, इसमें जिनके पास राइट टू वोट होगा, जो भी 18 साल से ज़्यादा एज के लोग होंगे, दे विल गो टू एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन, है ना. और जिस किसी भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो उस कंस्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो जाएगा, है ना. ये 5 कैंडिडेट हैं, इन 5 में से जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा इस कंस्टिट्यूएंसी में, he will become the representative of that constituency. ठीक है. तो इस तरह से पूरी जो हमारी कंट्री है उसको अगर हम देखें तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, अभी एक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है कि रिप्रेजेंटेशन क्या, रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, एंड कंस्टिट्यूएंसी से हम क्या मीन कर रहे हैं, स्मॉल एरियाज़ में बांटना. ठीक है. अब हम एक दूसरी तरफ बढ़ते हैं. यहाँ तक आपने समझ लिया, इस पर फिर से आए बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इफ़ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन प्रॉपरली. ठीक है. तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी. ओके. So we have understood the idea of representation and what do we mean by constituencies. Now you just try to understand another thing. We have a federal form of government, and under this federalism, what we find that we have government at in the original constitution we have government at 2 different levels. The first government is at the central level and the second government is at the state level. Okay. So सेंट्रल लेवल पे भी गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है. सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसमें और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसमें, चाहे गवर्नमेंट कहीं पर भी हो, उसमें उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. Three organs of the government. The first is legislature, the second is executive, and the third is judiciary. Okay, so these are the you can say इसको हम ऐसे लिखते हैं, legislature, executive, and judiciary. Okay, now you have to understand that all the government, all the organs of the government have different function. We have done this when we were discussing the features of the Indian Constitution. In that we have seen that we have adopted the separation of power, which means that each organ of the government has been assigned different function, है ना. जो legislature है उनको उनका काम होता है क्या, we have discussed it, याद है आपको, to make laws, है ना. जो executive है वो क्या करती है, to implement.
ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करती है और जो जुडिशरी है वो टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, है ना। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, चाहे दो इंडिविजुअल के बीच में आए, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल के बीच में आए, चाहे ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में आए, चाहे दो स्टेट्स के बीच में आए, किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जब अराइज होता है तो उसको सॉल्व करती है जुडिशरी। ओके, सो वी हैव फेडरलिज्म, वी हैव द सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। अब नाउ यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, हियर वी आर कंसर्न विथ लेजिस्लेचर ओनली। when we are talking about representation, we are talking about constituency, actually we are concerned with this legislature. Now this legislature is at both the levels. At the central level legislature is there, then at the state level legislature is there. The legislature which is there at the central level is known as पार्लियामेंट, है ना। ये सेंट्रल लेवल की लेजिस्लेचर होती है, लेजिस्लेचर एट द सेंट्रल लेवल। ओके, अब जो दूसरी हम बात कर रहे हैं स्टेट लेवल के लेजिस्लेचर, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। Legislative assemblies, these are legislature at the state level. Okay, I am telling you the basics, and you just try to understand that it is very important to understand these basics, because if you don't understand these basic terms, then these are going to create a lot of confusion in your mind. So you must be aware of all these terms, है ना। So हमने देखा कि जो पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल पे होती है उसको हम जो लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे होती है उसको हम पार्लियामेंट कहते हैं, और जो लेजिस्लेचर स्टेट लेवल पे होती है उसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। ओके, नाउ यू हैव read about this state level legislative assembly in class 7, है ना। Now and this we will be focusing on this parliament, दोनों पे हम लोग करेंगे, पर पहले हम लोग पार्लियामेंट को देख रहे हैं। ये जिसको हम पार्लियामेंट कह रहे हैं, in our country this parliament is bicameral. What does it mean, bicameral? Bi is two, कैमरल जो है वो हाउस के लिए आता है। देयर आर टू हाउसेज इन द पार्लियामेंट, द वन हाउस, द फर्स्ट हाउस, इट्स नॉट अबाउट ऑर्डर और एनीथिंग लाइक दैट, वन ऑफ द हाउसेज इज नोन एज लोकसभा एंड द अदर हाउस इज नोन एज राज्यसभा। नेम ऑफ द टू हाउसेज इज लोकसभा एंड राज्यसभा। Okay, and if we see the legislative assembly जो कि स्टेट लेवल पे होती है, तो स्टेट लेवल पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कुछ स्टेट्स में हमारे यहाँ वो दूसरा हाउस है, अदर स्टेट्स में एक ही हाउस है, तो उस पर अभी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं समझना है। यहाँ पर आपको ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, लोकसभा और राज्यसभा ये किस तरह से दो अलग अलग हाउस है, किस बेसिस पे इनको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर आप दो और टर्म है जिसे आप जान जाइए पहले, तो दैट विल बी फाइन।
member of parliament, they are called MPs, MP. और एक होता है member of लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम कहते हैं MLAs. ओके, तो ये MPs और MLAs जो होते हैं ये कौन होते हैं? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. अभी हम इसको कैसे पीछे से कनेक्ट करेंगे? जो हमने पढ़ा था कि हम इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं. So who are these representatives? ये जो MPs हैं, जो MLAs हैं, they are our representatives. The members of parliament and the members of legislative assemblies are the representatives of the people. Okay. Now you come to the structure of this parliament. Okay. Now we again go back to the two houses of the parliament. The two houses are Lok Sabha and Rajya Sabha, है ना? So in Lok Sabha we find, as the name suggests, this is the we can say this is the representative body of the people, है ना? जो लोग होते हैं ये उनको रिप्रेजेंट, इसमें वो रिप्रेजेंटेड होते हैं कॉमन पीपल, हमारे जैसे लोग, हमारे आपके जैसे जो कॉमन पीपल हैं. हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ होता है? हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है लोकसभा में. ओके. एंड राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा रिप्रेजेंट्स स्टेट्स. ठीक है, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है. स्टेट्स बोले तो मतलब हमारे जैसे वी हैव अ फेडरलिज्म, वी हैव 28 स्टेट्स. सो ऑल दीज 28 स्टेट्स गेट्स, ऑल दीज 28 स्टेट्स गेट रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा. ठीक है, तो ये लोकसभा, राज्यसभा, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड बाय द नेम ओनली. यू डोंट नीड टू मेमोराइज और एनीथिंग लाइक दैट कि आप भूल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है. लोकसभा का मतलब लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, जो जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमन पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड राज्यसभा जो कि स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, सो नाउ वी सी दैट जो इलेक्शंस होते हैं हमारे, जो इलेक्शंस होते हैं जिसमें हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, वो इलेक्शन इन्हीं के लिए होता है, लोकसभा के मेंबर्स के लिए. राज्यसभा के मेंबर्स को हम इलेक्ट नहीं करते हैं. मेंबर्स ऑफ राज्यसभा are not elected directly by the people. Okay, members of the Rajya Sabha are not elected directly by the people, but members of Lok Sabha are members of Lok Sabha are elected directly by the people.
ठीक है। तो ये आपको ये डिफरेंस समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि राज्यसभा के मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, उसमें हमारे जैसे जो कॉमन पीपल है दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स, बट इन ऑर्डर टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा द कॉमन पीपल टेक पार्टिसिपेशन। जो हम कहते हैं कि हर 5 साल पे इलेक्शंस होते हैं, तो इसी लोकसभा के मेंबर्स के लिए वो इलेक्शंस होता है ऑन एवरी 5 years। ओके, सो in order to elect the members of the Lok Sabha, we the common people use our right to vote। और इनके ही इलेक्शन के लिए पूरे कंट्री को छोटे छोटे डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कंस्टिट्यूएंसी, है ना। नाउ हियर यू मस्ट नो द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर in Lok Sabha? In Lok Sabha there are 543 members. So in order to elect these 543 members, what is done, that the whole country is divided into 543 constituencies, है ना। 543 543 members हैं, तो in order to elect these 543 members, the whole country is divided into 543 constituencies। ओके, तो अब ये 543 कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड हो गया पूरा कंट्री। हर कंस्टिट्यूएंसी से एक मेंबर जो है वो इलेक्ट होकर के आएगा, ठीक है। From every constituency one person will be elected as the member of the Lok Sabha। ओके, आई बात समझ में। अब इसी तरह से जो हम लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर देखें, तो फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली के भी जो मेंबर्स हैं, जिनको हम MLAs कहते हैं, लोकसभा के मेंबर को और राज्यसभा के मेंबर को हम MP कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को हम MLA कहते हैं। तो जो MLAs हैं दे आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल, और इनके ये कहाँ के किस लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है। तो इनके भी इलेक्शन के लिए स्टेट को बांट दिया जाता है कंस्टिट्यूएंसीज में। अब यहाँ पर आपको समझना है, सपोज वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ यूपी, ठीक है। यूपी में हमारे यहाँ जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नंबर है दैट इज 401। 401 मेंबर है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी में। ओके, सो इन ऑर्डर टू इलेक्ट दिस 401 मेंबर्स फॉर द legislative assembly of UP, what will be done, that the whole state will be divided into 401 constituencies। okay, जैसे ये हमारा 401 मेंबर्स है, तो उसके लिए 401 कंस्टिट्यूएंसीज में इसको बांट दिया जाएगा, है ना। और फिर हर कंस्टिट्यूएंसी से एक जो MLA है वो चुन के आएगा। कौन चुनेगा, हमारे जैसे आपके जैसे जो कॉमन पीपल है। इनका भी इलेक्शन हर 5 years पे होता है, हर स्टेट के लिए, है ना। यूपी के लिए इलेक्शन होगा, MP के लिए होगा, बिहार के लिए होगा, गुजरात के लिए होगा, उत्तर प्रदेश के लिए होगा। तो इस तरह से स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट बनती है उसको हम कहते हैं दिस MLA जो होते हैं। स्टेट लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं वो MLA के लिए होते हैं, और सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं वो MPs के लिए होते हैं। ओके, और यस, नाउ सो मेनी थिंग्स आर क्लियर टू यू, नाउ वी कैन मूव फर्दर, है ना। अब ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपकी समझ में आ गई हैं। अब हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जिसके बारे में यू मस्ट बी नोइंग, जिसको हम लोग पीछे की क्लास में भी किए थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका ये मतलब होता है कि जो राइट टू वोट है वो सभी लोगों को मिला हुआ है। सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया है, एक एज का और दूसरा सिटीजनशिप का। सो एवरी इंडियन सिटीजन हु हैज़ रीच्ड द एज ऑफ 18
will have this right to vote। इस तरह से हमने जो बेसिक चीज़ें थी वो हम समझ ली हैं, और अब आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की चीज़ें समझेंगे।